So, students, let's continue with the chapter, the last lesson. This is the last part of this lesson. In the previous parts, we have studied when friends went to school. That day, it was something different. The old men were sitting in the class. MML wore the shirt and frilled hat that he used to wear on special days. When MML declared that this is his last lesson, these words were like thunderclap on Friends, because he had not studied his own language, and he was very sorry for not learning the lessons well. Mr. MML explained that how a student, teacher, and parents are responsible when a student doesn't study. That day, the things were very easy for Friends because he was attentive in the class. He concentrated to his learning. He paid attention to what Mr. MML was teaching, and he felt that the learning is very easy today. He understood everything what Mr. MML taught, and then MML showed the importance of language with grammar. One by one, he went to other subjects, and now he talked about the words. I'll say France. The words were there. He was learning these words. Let's continue. They looked like little flags floating everywhere in the classroom, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over paper once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on the tracing their fish books as if that was French too. On the roof, the pigeon coo very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons? Whenever I looked up from my writing, I saw MML. जब MML पढ़ा रहे थे, जो वर्ड्स थे, अल्सेक, फ्रांस, ऑल दिस वर्ड्स, उसे लग रहा था जैसे सारे वर्ड्स हवा में तैर रहे हैं, जैसे इन वर्ड्स को किसी ने ऊपर से रॉड पर लटका दी है. सभी तरफ उसे अपने फ्रांस के वर्ड्स नज़र आ रहे थे, फ्रेंच लैंग्वेज नज़र आ रही थी. इट मीन्स वो पूरी तरह से लर्निंग के लिए रेडी हो गया था. उसे सब जगह वही सब दिख रहा था जो मिस्टर MML पढ़ाना चाह रहे थे. क्लास में पूरी तरह से साइलेंस था. यदि आवाज़ आ भी रही थी तो वो पेपर पर उनके पेन के चलने के स्क्रैचिंग वर्ड्स, वो आवाज़ आ रही थी, और कोई आवाज़ वहाँ पर नहीं थी. छोटे से छोटा बच्चा भी अपने ड्राइंग वगैरह कर रहा था, फिश बना रहा था. इस तरह सभी लोग पढ़ने में बिजी थे, सभी पढ़ाई कर रहे थे, बहुत अटेंटिवली लास्ट लेसन अटेंड कर रहे थे. अचानक उसकी निगाह ऊपर गई. पिजन कू कर रहा था, तो उसने बोला, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन. यहाँ पर दे का मीनिंग है जर्मन पीपल. जब जर्मन टीचर्स आएंगे तो उसे लगा कि क्या जर्मन टीचर्स इतने स्ट्रिक्टली पढ़ाएंगे कि इवन इन पिजन को भी जर्मन में कू करना पड़ेगा, जो उनकी साउंड है ये भी जर्मन में निकालनी पड़ेगी. ऐसा से लगा था कि वो घबरा गया था, वो डर गया था. उसे लगता था कि जर्मन टीचर्स आएंगे, बहुत स्ट्रिक्टली उसे पढ़ाएंगे, और उसके MML जैसे काइंड टीचर नहीं होंगे. लेट्स कंटिन्यू. Sitting motionless in his chair and gazing first at one time, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little classroom. जब कभी भी फ्रेंड्स ऊपर निगाह उठाकर देखता था, अपने टीचर की तरफ देखता था, तो MML उसे खोए हुए नज़र आए. MML सभी चीज़ों की तरफ देख रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे इन सारी चीज़ों को वो अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाह रहे हैं. सभी जगह नज़र घुमा करके क्लासरूम में देख रहे थे. लेकिन क्लासरूम कितना बदल गया था इन 40 ईयर्स में. व्हाट ही सेज, फैंसी 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस with this garden outside the window and his class in front of him, just like that. 40 years में उसका गार्डन भी कितना चेंज हो गया है, क्लासरूम कितना चेंज हो गया है, क्लासरूम का जो फर्नीचर है वो भी
कितना स्मूथ हो गया, चेंज हो गया है. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉन स्मूथ. द walnut tree in the garden were taller, and the hopvine, uh, hopvine that he had planted himself twinned about the window so to the roof. और जो छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह उसने लगाए थे वो भी सारे बड़े बड़े हो गए, अब ट्रीज बन गए. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव एट ऑल. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. अब उन्हें ये गांव छोड़कर जाना है और जाने के लिए तैयारी चल रही है. उनकी सिस्टर जो ट्रंक वगैरह खसका रही है उसकी आवाज़ आ रही है और पूरी क्लास साइलेंट है. उसे बड़ा फील हो रहा है कि पुअर मैन एमिमल ही इज़ लिविंग. कितना इसका दिल टूट गया होगा, कितना दुखी होगा, ये फ्रेंड्स फील कर रहा था. बट ही हैड द करेज टू हियर every lesson to very last. After the writing, he had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, baby, bobu down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. क्लास में स्टडी चल रहा है. एमिमल उन्होंने सभी लेसन्स दिए, राइटिंग लेसन्स दिए, हिस्ट्री के लेसन्स दिए और कुछ बच्चे पीछे अपने वर्ड्स चैंटिंग कर रहे हैं. और ओल्ड हाउसर है, उसने अपना स्पेक्टिकल ठीक किया और अपने वर्ड्स प्राइमर हाथ में लेकर के अपने वर्ड्स को पढ़ा, स्पेल आउट किया. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. जो ओल्ड हाउसर था वो भी बेचारा रो रहा था, क्राइंग हो रहा था. हिज वॉइस ट्रैम्बल विद इमोशन. उसकी आवाज़ भी कांप गई, ट्रैम्बल हो गई, इमोशनल हो गया. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट, दैट लास्ट लेसन. उस दिन उसको देख कर उसे भी हंसी आ रही थी, बट वो हंस नहीं सकता था. समझ रहा था कि सभी लोग कितने इमोशनल हो गए. एंड हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट ऑल इट दैट लास्ट लेसन. वो समझ में आ गया कि ये लास्ट लेसन ये हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाला है. ऑल एट वंस द church clock struck 12. Then the Angelus. At the same moment, the trumpet of the Prussian returning from drill sounded under our window. Emil stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. फिर दोपहर 12 बज चुका था. चर्च बेल स्ट्रक हुआ. नीचे पर्शियन शेल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, उनका आवाज़ आ रहा था. जैसे ही चर्च बेल ने 12 o'clock स्ट्रक किया, एमिल खड़े हुए और पेल फेस में बहुत दुखी होकर के खड़े हुए और कुछ कहना चाहते थे. ही सेड, माई फ्रेंड्स, सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम. ही कुड नॉट गो ऑन. वो आई कह के रुक गए, वो बोल नहीं पाए. उनका गला जैसे चोक हो गया, कुछ चीज़ उन्हें गले को रोक दिए, बहुत इमोशनल हो गए और आगे कुछ कह नहीं सके. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. फिर he turned to the blackboard और एक चौक पीस उठा करके उन्होंने बोर्ड पर जितना बड़ा हो सकता था लिखा, विवा ला फ्रांस, गुड बाय फ्रांस. This is a French word. La is article in French. So, viva la France, goodbye France. Then he stood up, stopped and leaned his head against the wall. And without word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. और वो कुछ कह नहीं सके, सिर्फ बोर्ड पर बड़े वर्ड्स में लिखा, विवा ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस. और बगैर टर्न हुए दीवार पर सर रख करके धीरे से उन्होंने हाथों से इशारा करके कहा, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ.